In today's class, we will discuss dielectric constant. Dielectric constant. Its other name is relative permittivity. Actually, dielectric constant is the ratio. अब रेशियो किसकी है? About that we will go to talk. First of all, I tell you about epsilon. This is what? Electrical permittivity of a medium. And epsilon naught electrical permittivity of free space. एप्सिलॉन एक मीडियम का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है और एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस का परमिटिविटी है. अगर आपको सपोज इन ए क्लासरूम a student whose name is A has weight 100 kg. B has weight 50 kg. C's weight is 25 kg and D's weight is 200 kg. अब मैं बात करना चाहता हूं हर एक के वेट के बारे में इन द रेस्पेक्ट ऑफ वेट ऑफ ए. और ये बात कैसे की जाएगी कि वेट ऑफ बी अपॉन में वेट of A. So this is 50 upon 100. This is 0.5 or you can say 1/2. तो we can say कि यहाँ पर weight of B है वो 50 किलोग्राम है, but relative weight of B कितना है? हाफ. इसका मतलब रिलेटिव का मतलब आप रेशो निकाल रहे हैं इसके वेट की किसके वेट से? एक वेट से. आप किसी के रिलेटिवली बात कर रहे हैं. हमने कहा कि जो B है वो A के रिलेटिव आधा ही है. वो B जो है वो A के रिलेटिव आधा ही है. हम रेशो बता रहे हैं. अब हम जो है एक रेशो बता के उस के वेट की मेजरमेंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं. हम 50 किलोग्राम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं जितना A है उसका आधा है. तो इन द सेम सेंस कि परमिटिविटी भी किसी मीडियम की हम जो है इस तरीके से एप्सिलॉन किसी की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की बात कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एप्सिलॉन नॉट. उसके लिए कहीं ना कहीं जैसे यहां पर वेट ऑफ बी की बात हुई है तो जो हाफ आया है, जब आपने वेट ऑफ बी का रेशियो निकाला है वेट ऑफ ए से, और इस ये क्या है, इसको आप कह सकते हो रिलेटिव वेट ऑफ विद रेस्पेक्ट टू ए. वो हाफ है. ए के रिलेटिव बी का जो वेट है वो हाफ ही. इन द सेम सेंस K is equal to epsilon upon epsilon is not is called dielectric constant. Very simple. The ratio of the electrical
permittivity of a given medium to the electrical permittivity of vacuum is called relative permittivity or dielectric constant. Okay, so this thing is clear to you all. Okay, अब इसकी एक अप्रोच और है. We will see this thing by second approach. All of you know K is equal to dielectric constant is equal to epsilon upon में epsilon naught. Second approach के लिए what I do, यहां पे गिवन मीडियम है, गिवन मीडियम, यहां पर वैक्यूम है, टू चार्जेस हैं, this is q1, this is q2. I keep them in the given medium at distance r. The same charges are placed by me in vacuum at the same distance apart r. Here I calculated the force Fm q1 q2 upon में r square, और यहां पर आएगा कांस्टेंट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आएगा एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, q1 q2 upon r square. But in vacuum force in vacuum will be equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. All of you know k is equal to epsilon upon my epsilon naught. Okay, now every force in vacuum upon my force in medium is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon my r square. 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon my r square. Here you find this thing will cancel with this, 4 pi cancelled with 4 pi, and at last you are getting fv upon my fm is equal to 1/epsilon naught upon my 1/epsilon. Such type of thing you will get. This will go here and one will go here. At last you are getting what you are getting. You are getting, I write here fv, I write, so here from this thing I write fv upon my fm, force between the charge when they placed in medium is equal to epsilon come here upon my epsilon naught. दोबारा से आपको k का वैल्यू मिल गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल गया, तो यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक डेफिनेशन ये भी हो जाएगा. ओके, सो यू कैन राइट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट may be defined as a ratio of the force between two charges
placed two charges in vacuum, placed some distance apart to the force between same charges in the given medium placed at the same distance apart okay. So this is second definition of dielectric constant. So it is all about dielectric constant. So that's why at last K is equal to epsilon upon में epsilon naught, then epsilon is equal to K epsilon naught. This is the relation. Okay. So next topic is principle of superposition of electrostatic forces. Principle of superposition of electrostatic states that when a number of charges interact each other, then the total force on a charge is the vector sum of forces on it due to all other charges. Suppose करो कि we have a system और उस सिस्टम के अंदर हमारे पास चार्जेस हैं Q0 पहला चार्ज, Q1, Q2, Q3, Q4, total 5 charges. There are total 5 charges. Their name are Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 और सभी के सभी जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं. ऑल चार्जेस आर इंटरेक्टिंग ईच अदर. और लेट अस सपोज वी हैव टू फाइंड टोटल फोर्स और यू कैन से नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0. अब हमें चार्ज Q0 पे नेट फोर्स निकालनी है. तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हम Q0 पे लगने वाली फोर्स जो Q1 की वजह से लग रही है उस फोर्स को निकालना होगा वेक्टर फॉर्म में. दूसरा क्या चाहिए हमें? दूसरा चाहिए हमें चार्ज Q2 की वजह से Q1 Q0 पे लगने वाला फोर्स. इसी तरीके से Q3 की वजह से लगने वाला फोर्स, Q4 की वजह से लगने वाला फोर्स. तो इन चारों की वजह से जो लगने वाले फोर्सेस हैं इनका वेक्टर समेशन करने से हमें क्या मिलेगा? नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0. ओके. तो दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. तो इसको हम और आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे होता है. आई टेल यू. Like this is X, this is Y or this is Z. Okay, this is origin. Here there is a point charge and its name is Q0. Placing here and the position vector of the point where Q0 is placed is R0. R0 से मैंने इसके पोजीशन वेक्टर को मैंने डिनोट कर दिया है. और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पोजीशन वेक्टर आप कैसे निकाल सकते हो. अगर इसका कोऑर्डिनेट सपोज करो x0, y0, z0 है तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा x0 i कैप प्लस y0 j कैप और प्लस z0 k कैप. ओके. अब इसके बाद जो है आप बात करेंगे दिस इज Q1. ओके. आफ्टर दैट कहीं पर आप Q3 रख दीजिए अपनी मर्जी से. तो पोजीशन वेक्टर आपने इसका मान लिया, इसका पोजीशन वेक्टर है R1.
इसके बाद आपने दे दिया दिस इज ए चार्ज दैट इज Q3। आपकी मर्जी है, अगर आप 3 चार्जेस को लेना चाह रहे हैं तो 3 को ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे 3 चार्जेस है, Q0, Q1, आफ्टर दैट Q2, और अगर एक को और रखना है तो हम एक को और रख लेंगे। दिस इज Q3। The point to be noted is that the charges taken by me all are positive. It is my consideration. ये मेरी मर्जी है कि मैं उसको जो है कैसा लेने वाला हूँ, लेकिन आप ये मान के चलिए कि मैंने जितने भी चार्जेस लिए सारे के सारे जो मैंने चार्जेस लिए ऑल आर पॉजिटिव चार्जेस। थोड़ा सा और नीचे ले लेंगे जिससे आपको दिख सके दीज आर मे बी फिगर क्लियर। अब यहां पर मुझे जो चाहिए नेट फोर्स चाहिए ऑन चार्ज Q0, ओके, नेट फोर्स। अब Q0 में जो फोर्स इसकी वजह से जो लगेगी फोर्स, क्योंकि सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो ये वाला जो चार्ज है वो इस चार्ज को रिपेल करेगा और इस पर लगने वाली जो फोर्स होगी वो कहीं ना कहीं इस टाइप की होगी, इधर की तरफ। और दिस फोर्स कैन बी रिटन एज F01। और ऑल ऑफ यू नो कि ये जो फोर्स लगने वाली है कौन से वेक्टर के अलोंग लगने वाली है, उस वेक्टर के अलोंग जो उस पॉइंट से स्टार्ट होता है जिस पॉइंट पे चार्ज Q1 रखा है और जाके उस पॉइंट पे एंड हो रहा है जहां पर चार्ज Q0 रखा है। यानी कि इट इज एक्टिंग अलोंग द वेक्टर फ्रॉम हियर टू हियर। द वेक्टर कैन बी रिटन एज R10। ओके, सो आप कहोगे फ्रॉम डायग्राम from figure here F10 F01 will be equal to 1/4 pi epsilon naught। और मैं ये भी मान रहा हूं कि सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव भी हैं और कहां पर रखे हुए हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं। Q1 Q0 अपॉन R10 का स्क्वायर। R10 क्या है? R10 is the magnitude of vector R10। ओके, उसके मैग्नीट्यूड को ये मैंने कहा। और इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है दैट इज आई एम टेकिंग R10 कैप, दिस इज द यूनिट वेक्टर। ओके, सो इन द सेम मैनर यू कैन डिफाइन F02। F02 will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q2 Q0 upon R20 R20। अगर मैं Q2 की बात करूं, दिस इज Q2 और द फोर्स will act along this will be the force, repulsive force F20। This is R10। अगर मैं Q3 की वजह से लगने वाली फोर्स के बारे में बात करूं तो दिस फोर्स विल बी दिस फोर्स F03 minus 1/4 pi epsilon naught Q3 Q0 R3 naught square R3 naught like this। So total force, how we can calculate total force? Total force F will be equal to F
not 1, F not 2, F not 3. This is the total force. And so I am going to I am writing now here my F is equal to net force. Net force F is equal to F naught 1, F naught 2, F naught 3, or you know this is 4 pi epsilon naught Q naught, Q1 Q naught, R1 naught का स्क्वायर, R1 naught क्या 1/4 pi epsilon naught Q2 Q naught upon में R2 naught स्क्वायर, R2 क्या 1/4 pi epsilon naught Q3 Q naught R3 naught का स्क्वायर, R3 naught का. Okay. From all this 1/4 pi epsilon naught Q naught can be taken as form. You will get Q1 R1 naught square cap, Q2 R2 naught square, R2 naught cap, plus Q3 R3 naught square, R3 naught cap. Actually, okay, this is the answer. This is the superposition principle. This Q naught can be written as here Q naught. If anybody want to proceed further this, then you can write as Q, because all of you know R vector is equal to, I am very sorry, R cap is equal to R vector upon its magnitude. So that's why here this will be equal to R vector upon its magnitude R1 naught. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R1 naught क्यूब, Q2 R2 naught क्यूब, R2 naught cap, Q3 R3 naught क्यूब, R3 naught cap. फर्दर आगे भी इसको लिखा जा सकता है, और आप सबको पता है कि आगे इसको कैसे लिख सकते हैं हम क्यूब, R1 naught vector it is equal to R naught vector minus R1 vector plus Q2 R2 naught cube R naught vector minus R2 vector plus Q3 R3 naught cube here R naught vector minus R3 vector. Okay, so okay, I write here plus Q3 R3 naught का square R naught vector R3 vector, like this you can write. So अगर आप एक चार्ज और ले लें तो यहाँ पे एक टर्म और आ जाएगी Q4 अपॉन में R4 naught का स्क्वायर, और here R naught minus R4 vector, R naught vector minus R4 vector. इसी तरीके से you can define this for 5 charges. In same manner you can define for 10 charges, or in same manner you can define for n charges. Okay. Further I want to discuss about electric field. Okay.
electric field. The reason in which a charge experiences an electrostatic force is called इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला. अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज करो आपके पास एक मैग्नेट है और मैग्नेट को आप कहीं लेकर जा रहे हैं और suddenly you find that the magnet that you have is being attracted in some region. It mean what कि in that region there is also some other magnet. तो कोई दूसरी मैग्नेट है आसपास ही, और जिसकी वजह से वो दूसरी मैग्नेट आपके मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रही है. अगर आप एक मोबाइल लेकर जा रहे हैं और मोबाइल में अपने वाईफाई पर जाके आप क्लिक करिए तो आपका वाईफाई दिखाता है कि यहाँ पर कौन कौन से वाईफाई अवेलेबल है. और अगर कोई भी वाईफाई नहीं है तो आप कहोगे कि वहां पे कोई भी वाईफाई नहीं है. तो ये कोई भी रीजन, अगर एक रीजन है और आपका मोबाइल दिखा रहा है कि वहां पर वो वाईफाई कनेक्शन है, इट मीन आप कहोगे कि वहां पर इंटरनेट आ रहा है. और अगर आप उस वाईफाई को असेस कर पाते हो तो आप उसको चला लोगे, ठीक है ना. लेकिन वाईफाई वहां पर इंटरनेट है, अगर वहां पर उसको आप एक्सेस कर पाओ तो चला लेंगे आप. इन द सेम मैनर क्या है कि कोई भी रीजन जिसके अंदर एनी चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका सोर्स क्या है? अबाउट सोर्स वी आर नॉट बोदर, लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज अट्रैक्ट हो या रिपेल हो, हम उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड. भाई सोर्स में फॉर एग्जांपल आई टेल यू, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके आसपास कोई एक रीजन जरूर होगा जिस रीजन में ये किसी दूसरे चार्ज को, किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर पाएगा और किसी दूसरे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर पाएगा. दैट रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन ऐसा नहीं है. अब यहां पर एक चीज और भी आती है. तो यहां पर सोर्स क्या है? चार्ज. अभी आप पढ़ेंगे आगे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट किया, कि आपने यहां पे पॉजिटिवली चार्ज कर रखी लाइक दिस, और दैट इज पॉजिटिवली चार्ज. ओके, देयर इज अनदर positively charged. Okay, this is तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट रखी है. एक प्लेट कैसी है? एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट नेगेटिव चार्ज. और इन प्लेट्स के बीच में आप देखोगे कि इनके बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है. ऐसे ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन प्लेट्स के जो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा. लेकिन इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा. यूनिफॉर्म मींस व्हाट? कि यहां पर क्या है कि अगर एक माता पिता हैं और माता पिता के 4 बच्चे हैं, तो वो लगभग मैं सभी के बारे में नहीं मैं मतलब अगर ग्लोबली बात करूं तो हर एक माता पिता का ये रहता है कि उसके जो 4 बच्चे हैं उनको सेम प्यार जाए. तो यहाँ पर जो हर जगह आप जो है रीजन देखेंगे प्लेट्स के बीच का, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म.
तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यानी कि हर पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे हैं तो हर जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम मैग्नीट्यूड मिलने वाला है। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो पॉइंट इसके क्लोज में होगा, उस जो क्लोज में, जितना क्लोज में होगा उतना ही जो है मैग्नीट्यूड एट दैट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ओके, ठीक है, तो ये बात हुई इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे लेकिन हम कैसे बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हमने कहा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहाँ पे और कम हो गया, यहाँ पे और कम हो गया, यहाँ पर और कम हो गया, लेकिन यहाँ पे ज्यादा है जो बिल्कुल इसके क्लोज में है। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि प्लेट्स के बीच में, ऐसा हम आगे पढ़ेंगे कि अगर ऐसे ही हम कुछ डिजाइन करते हैं सिचुएशन, तो उस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा रहेगा, वो बिल्कुल सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिल्कुल एक जैसा रहेगा। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करेंगे, अबाउट दैट वी डिस्कस। Electric field at a point is defined as a force experienced by unit positive charge. कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आ गया होगा कि सर ने लिखा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं लिखा? क्या यूनिट नेगेटिव चार्ज लिखने से क्या क्वेश्चन या डेफिनेशन गलत हो जाएगी? मैंने कहा नहीं, डेफिनेशन गलत नहीं होगी। एक्चुअली हम हैबिट में पॉजिटिव यूनिट चार्ज की, सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हैबिट होने की वजह से। तो हमने बात करी यहाँ पर कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही हमने क्यों लिया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने इसलिए लिया क्योंकि जरूर जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं उसमें मान के चल रहे हैं कि उसका सोर्स जो है वो भी क्या है, वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो हम यूनिट चार्ज को लाएंगे तो रिपेल करेगा। ओके, लेकिन नेगेटिव के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव भी कह सकता है, नेगेटिव अगर लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव है तो डेफिनेशन में हम पॉजिटिव केवल इसलिए लिख रहे हैं कि जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम हैबिट में है यूनिट पॉजिटिव चार्ज की, वरना यहाँ पर जो लिखा जा सकता था वो कहीं ना कहीं नेगेटिव भी लिखा जा सकता था। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आप पॉजिटिव ही लीजिए आप यहाँ पे हमेशा। ओके ओके फाइन। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू नॉट अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। गलत लिखा है, आई एम सॉरी। एस अपॉन में क्यू नॉट, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। भाई यहां पर मैंने ये लिखा इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अगर आपके पास ये कोई रीजन है और इस रीजन के अंदर आपने यहां पर कोई, आपको जो है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है किसी सोर्स की वजह से, इसका कोई सोर्स है भाई, हमें नहीं पता क्या सोर्स है, लेकिन किसी सोर्स की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पॉइंट पे, इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर यू हैव टू टेल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहें, इसका एक नाम और भी है, हाँ भाई, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड
इंटेंसिटी, इसको हम फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों एक ही बात है। तो आपको अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यू कैन से फील्ड इंटेंसिटी अगर बतानी है, देन यू कैन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is the amount of force experienced by unit positive charge placed at this point. It is the definition of electric field or field intensity. लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, what I want to say, कि हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखते हैं। Why टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल चार्ज, बहुत ही छोटा चार्ज। टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल चार्ज। और हम क्या करेंगे, फोर्स को डिवाइड करेंगे Q नॉट से। दिस इज Q नॉट। ओके, आइए एक्सप्लेन। If you go to market and go to buy 50 kg sugar, and for this you paid 1000 rupees, 1000. It means price is 20 rupees 20 per kilogram. Hopefully not. But you go to the same shop and you carry and you bought 0.2 kilogram sugar. For this 0.2 kilogram sugar you paid rupees 4. मेरा क्वेश्चन ये है कि ये डिवीजन आपको कितना पैसा देगा? मुझे लगता है ये डिवीजन भी आपको 20 रुपए पर किलोग्राम। फ्रॉम दिस रेशियो यू आर गेटिंग 20 rupees 20 per kilogram, and this ratio you are getting rupees 20 per kilogram. From both ratio you are getting rupees 20 per kilogram. Okay? आपके घर में सपोज करो मैं आ जाऊं तो आप मुझे सर्व करेंगे चाय, नाश्ता, कॉफी, जो भी मिठाई। ओके, तो मुझे लगता है आपका जो बजट है उस बजट पे मेरे आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मुझे आगे जाना भी है। लेकिन सपोज करो मैं आपके घर आ गया और लॉकडाउन लग गया, जैसा लग गया है, और अब प्रॉब्लम यह है कि आपका घर और मेरे घर के बीच की दूरी जो है करीबन 100 किलोमीटर है और जो है नोएडा का बॉर्डर भी पार करके जाना पड़ेगा और अब पॉसिबल ही नहीं है घर लौटना और मैं आपके घर ही रहने लगूं। तो मुझे लगता है कि अगर अभी जैसा कि 50 दिन लगभग लॉकडाउन रहा, 50 दिन मैं आपके घर पे रहूंगा तो शायद मुझे लगता है आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको सब कुछ मुझे देना है, खाना पीना। तो अगर मैं यहाँ पर बहुत बड़ा चार्ज रखता हूँ, Q नॉट को स्मॉल ना रख के एक बड़ा चार्ज रखा जाए, तो कहीं ना कहीं इस बड़े चार्ज का अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड हो और इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड उस जिस किसी दूसरे सोर्स चार्ज का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को तो बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करेगा। तो हमें क्या करना है कि यहां पर निकालना है, लेकिन निकालने के लिए टेस्टिंग के लिए इतना स्मॉल चार्ज रखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हमें निकालना है उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई भी इफेक्ट ना आए। तो दैट्स व्हाई वी यूज मैथमेटिकली Q नॉट वेरी स्मॉल और दैट्स व्हाई आई रोट लिमिट Q नॉट एज वेल। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आपने इस फोर्स को सपोज करो आपने लिखा है कि वहां पर जो फोर्स है वो फोर्स जो है वो 40 न्यूटन है, कि क्या लिखा है आपने, फोर्स को 40 न्यूटन है। सपोज आपने लिखा कि जो फोर्स है वो 40 न्यूटन है, दिस इज योर फोर्स, और फोर्स को आपने Q नॉट से डिवाइड किया है, तो आपको जो आंसर मिलने वाला है वो मैग्नीट्यूड वाइज मिलेगा। लेकिन अगर आप देखो ये वेक्टर जो मैंने लिखा है 1/√2i प्लस 1/√2 j, केवल है ही इसमें, ये यूनिट वेक्टर है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा, और अगर आप इसका 40 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो फोर्स है वो वेक्टर फॉर्म में आ गई, और इस वेक्टर फॉर्म को अगर आप Q नॉट से डिवाइड करेंगे तो ये जो निकल के आएगा वो होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप जो है स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं या वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप F को कैसे लिख रहे हैं। अगर आपको F को आपने स्केलर में लिखा है तो आपका EV स्केलर होगा, बट इफ यू आर राइटिंग योर F
in vector form, then your electric field intensity or electric field at that point also will be obtained in vector form. That is the thing. Okay, so this is the definition of electric field intensity. Okay, so in next class we meet again. Okay.